Assalamu alaikum. Welcome to the class. I hope you can hear me loud and clear. अच्छा, तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर आपके लिए वो अपलोड हो जाती है। सो यू डू नॉट नीड टू रिकॉर्ड द वीडियो। सो आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। अच्छा, so now I will share the desktop with you. I hope you can see the desktop. It says lecture number 5. Acha, so previously we were discussing some of the control structures that were related to the C++. So we already discussed that we have three kind of control structures in C++. What are those control structures? Sequence control, and we have the selection control, and finally we have the repetition control. अच्छा, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जितना भी प्रीवियस सेशन होगा उसको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। जितने भी आपके स्टूडेंट्स उनको बता दें जिनका यूईटी का डोमेन नहीं है, जो यूईटी का ईमेल एड्रेस जिनका नहीं है, तो उनको क्लास में नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है। याहू या हॉटमेल या कोई भी जीमेल का जो एड्रेस है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में। आपका अगर यूईटी का डोमेन का ईमेल एड्रेस है तो ऑटोमेटिकली आप जस्ट लिंक पे क्लिक करें और यू विल बी इन द क्लास। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट three kind of control structures we have: the sequence control, the selection control, and the repetition control. What is the sequence control? A program in C++ is written in a particular sequence. That means the line 1 will have the code that will be executed first. The line 2 will have the code that will be executed second. Similarly, you write a program in a particular sequence, and the compiler will execute the program in that particular sequence. Okay, until and unless the compiler encounters two other kind of control structures. What are those control structures? The selection control and the repetition control. सीक्वेंस कंट्रोल को तभी डिस्टर्ब किया जाएगा जब कंपाइलर के सामने दो और स्ट्रक्चर्स आ जाएं। वो दो और स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? Selection control and repetition control. What is the selection control? As the name indicates, in selection control, the compiler has to select something and leave something. Select something, leave something. Leave something, select something. So something like this. So that's why it's called selection structure. In some of the text, it says decision structures. So selection structure या decision structure एक ही चीज है. Now, we have another kind of structure that is called repetition structure. Repetition structure, they are also called as loops. इनको loops क्यों कहा जाता है? Because there are certain conditions where you want the program to be executed more than once. एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पे आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा बार बार रन हो, कोई वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई हो, कोई वैल्यू बार बार डिस्प्ले हो, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. देन you use the repetition structure. So now we know that we have three kind of structures in C++. First, we have the sequence control, the sequence structure.
then we have the selection structure या selection control, and finally we have the repetition control या repetition structure. So sequence structure that is built in, and you have already used the sequence structure. You write a program in a particular sequence and the compiler executed in that sequence until and unless the compiler encounters the repetition structure or the selection structure. Selection में कौन से structures हैं? We have if and else, nested if and else, and switch. Repetition में कौन से हैं? In repetition we have for, while, do while. So the repetition structure, they are called loops. And selection structures similarly they contain if else, nested if and else, and switch. So last time we have seen what is if. If starts with a keyword, then you have the brackets. In the brackets you have the condition. Condition will always have the Boolean expression. Boolean expression means the value it will return will be true or false. Within those brackets, we can use the relational operators and equality operators. Relational operators कौन से? Less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. For example, x is less than y. So the answer could only be true or false. या तो x y से छोटा होगा या बड़ा होगा. So when the condition becomes true, the immediate statement after the if will be executed. If the condition becomes false, the immediate statement of the if will be skipped, and next statement after that statement will be executed. So the scope of if is immediate statement after the if. When you want to increase the scope of the if, you have to put the curly braces. Curly braces will increase the scope. Let's say 10 statements depends upon a single if. So then you have to put the curly braces. Same applies to if and else. But in if and else, if you want to do certain kind of task, when the condition becomes true, one of the tasks will be executed. If the condition becomes false, another kind of task will be executed. So the else contains the counterpart of if, but in the else portion, you do not provide the condition. The condition will only be given in the if part. The else part will contain the not or the counterpart of the if. Similarly, you can use nested if and else. Nested if and else क्या है? In nested if and else, what happens? You can use another if statement in the else part of the previous if, or you can also use an if statement within another if statement. That's your choice. You can do the nesting as many levels as you want. There is no restriction, but unnecessary nesting will increase the complexity of the program. जितनी ज़्यादा आप nesting करेंगे उसका नुकसान क्या है? Complexity ज़्यादा हो जाएगी. How the nested if and else executes? When one of the condition in the nest becomes true, only the immediate statement after that if or else will be executed. The rest of the nested if and else will be skipped. इसका मतलब हुआ कि 10 या 20 नेस्टिंग हुई है जिसमें एक कंडीशन कहीं पे ट्रू हो जाती है, सिर्फ वही इफ या सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो है सारा स्किप कर जाएगा. ठीक है? आउट ऑफ 100 ओनली 1 will be executed if it becomes true. ठीक है? बाकी सारा सब कुछ स्किप कर जाएगा. फिर we have seen when we have a lot of nesting, we try to avoid. If we how we can avoid? We can avoid that using a switch selection structure. Switch nested if and else या multiple ifs की replacement है. Now you can look at the screens. So last time we have seen the switch multiple selection structure.
The switch starts with the keyword switch. Then after the switch, you can see in the bracket you have the variable. This variable is called test variable. Then you have the curly braces, case value 1. This value 1 will contain the integer or the character. The integer or the character value will be checked against this test variable, जिस तरह के if के अंदर condition होती है, ठीक है? On the occurrence of the true, if this satisfies this, then the statement will be executed, and then you have the break. What is the task of the break? The break will separate one case from another. Case 1 को case 2 और 3 से separate करने के लिए we have the break. अब आप दोनों को combine भी कर सकते हैं. Then you have case 2 and case 3. Then keep it in your mind, you have to put the colon after the case. If these two cases becomes true by testing with this test variable, this statement will be executed, then break. Whatever is covered in if and else, so that will be contained in cases, case 1, case 2, case 3. Whatever is not mentioned in the cases, whatever is not mentioned in the if, whatever is not mentioned in the cases, so that will be contained in the default part. जो चीज केस 1, 2, 3 में नहीं है तो वो किधर होगी? डिफॉल्ट. सो सब में जो चीज नहीं होगी वो किधर होगी? डिफॉल्ट. तो लास्ट टाइम हम इसको देख चुके हैं. अच्छा, नाउ what it says, you can use an integer variable to store the character and vice versa, and you can also use the character variable to store the integer value. But what happens when you use the integer variable to store the character? So actually it will not store the character, it will store the ASCII of that particular character, जिस तरह के इस केस में आप देख रहे हैं, ठीक है? So the ASCII of the A is 65, so the 65 will be stored here, okay? And when you want to display, so it will display the value 65. Similarly, the character, now it will store the character. When you put the 97, so the 97 represents the ASCII lowercase a, so the lowercase a will be stored in this letter, okay? तो दोनों possible हैं कि character में आप integer value store करें और integer में आप character value store. Okay. Now this is if and else. Now by looking at this if and else, we can say that we have three conditions. If somebody puts the value of 1 or inputs 1 from the keyboard, then your program will display human resources. Similarly, if somebody puts 2 from the keyboard, your program will display sales. And finally, if you put 3 from the keyboard, your program will display information systems. If other than these three cases, 1, 2, 3, इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट की कोई भी वैल्यू देंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? नो सच डिपार्टमेंट. दिस इज नेस्टेड इफ एंड एल्स. कोई एक वैल्यू इसमें ट्रू हो गई, अगर 1 आ गया या 2 आ गए या 3, वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो एग्जीक्यूट होगी. बाकी का सारा जो सेक्शन है वो स्किप कर जाएगा. इसी की रिप्लेसमेंट हम देखते हैं, वो ये है स्विच. Now the same case is implemented using the switch statement. So the test variable is department. The case 1, when you input the value 1 from the keyboard, so it will be test against the department. When the value of the department is 1, so it will display human resources. Similarly, when the value of the department is 2, it will display sales. Or if value of the department is 3, it will display information system. इसके अलावा कोई भी value दें, 4, 5, 6, 7, whatever, it will display no such department. And last time we have seen this program.
प्रोग्राम क्या कह रहा है? राइट a C++ program that enters the student grades represented by letters A, B, C, D, and F. Program should not be case sensitive. Use switch to count the number of each different letter grades that the student earned on exam. Observe the flow chart on the next slide. एक प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम लिखना है, उसने क्या काम करना है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को रिकॉर्ड करना है ए, बी, सी, डी और एफ की सूरत में। जब वो ग्रेड्स रिकॉर्ड हो जाए तो उसको फाइनली जब आप एंड ऑफ कैरेक्टर देंगे कंट्रोल जेड, so the program will terminate and it will tell you how many students got A, how many students got B, how many got C, similarly D and F. Okay? So for that particular reason, we have used the while loop, and we have seen that the while loop will keep on executing until and unless it reaches the end of character. ठीक है? जब तक आप end of character नहीं देते तो while loop run होती रहेगी. So that's the program. You have 5 counter variables. You have initialized them from the 0, and you have 1 variable for the grade. You have the while loop. What does it says? cin.get equals to grade. Yeah, grade equals to cin.get. That means you have to input the value of the grade through cin using a built-in function called get. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप cin से वैल्यू दे सकते हैं। किस चीज में असाइन कर रहे हैं? ग्रेड को। कब तक वैल्यूज देंगे? जब तक एंड ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाता है, कंट्रोल जेड नहीं पुट कर देते। सो दिस while loop keeps on running. Within the while you have the switch. The test variable is grade. और केसेस आपके पास 5 केसेस हैं। केस सेंसिटिव खत्म करने के लिए हमने ए और स्मॉल ए दोनों डाल दिए। एक और चीज इग्नोर करने के लिए नेक्स्ट लाइन, स्पेस और टैब, इनको इग्नोर करने के लिए इसके लिए भी हमने केस लिख लिया, उनको इग्नोर कर लिया जाएगा। ठीक है? सो ये लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम देखा था ऑन अ स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, नाउ switching to the repetition structure. Repetition structure, we have 3 kind of repetition structure in C++. They are called loops. We have while, do while, and for loop. So the many applications require certain operations to be carried out more than once. Such situations require repetition in control flow. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि वो चाहते हैं कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिपीटिशन स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट वी विल लुक इनटू द while loop. So the while loop, you look at the syntax. It starts with the keyword while. See? Then you have the Boolean expression, which when becomes true, this statement to repeat will be executed. अगर ये boolean expression true हो जाती है तो ये statement जो है ये बार बार repeat की जाएगी। कितनी दफा? Depends upon the condition, कि condition में आपने क्या mention किया। Why we have the curly braces here? Because it says braces are required for compound statement. That means when we have more than one statement, and we want those statements to depend on this while loop, so we put the curly braces. If we have a single statement, then we do not require these curly braces. ठीक है? वही if, जिस तरह if में हम करते थे वही बात है, condition में वही boolean expression है, x is less than y, x is greater than y. When you have the compound statement here, then you can use the relational operators as well. X is less than y and x is greater than z, something like this. तो बिल्कुल जो हमने f की knowledge, f से related चीजें देखी थी, that can be used here as well. अच्छा, again the syntax of the while loop. So this blue, you can see that is the keyword. Then you have the Boolean expression. Boolean expression means there you have the expression which can only have the value of true or false. Then
You have the statement block, statement 1, statement 2, statement 3, up to the statement last. And finally, closing the curly braces. Now, if the condition becomes true, all the statements in the block will be executed. When the condition becomes false, all the statement within the block will be skipped and next statement जो इधर होगी इसके बाद वो execute हो जाएगी. Same while loop, boolean expression and statement. Statement के बाद semicolon होना जरूरी है, but it says do not put a semicolon here. जो while कीवर्ड है और कंडीशन है उसके बाद सेमीकॉलन नहीं होना चाहिए, ठीक है. स्टेटमेंट के बाद सेमीकॉलन is must. If you do not put, it will return you the syntax error. Flowchart. When the condition becomes true, yes, statement in the loop executed, बार बार ये काम होता रहेगा. कब तक होता रहेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती और बाहर नहीं निकल जाता. First condition is evaluated. If true, the body of the loop is executed and the control is transferred back to the condition for re-evaluation. वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि first the condition is evaluated, condition check की जाएगी. अगर condition true है तो body of the loop को execute किया जाएगा और अगर condition false हो जाती है तो body of the loop से बाहर निकल जाएगा. During execution, some item from the boolean expression is changed. वो कब होंगे? जब हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो कुछ ना कुछ आइटम्स चेंज होते रहेंगे. If false, the while loop is exit and control is transferred to the statement after the while loop. A while loop might not execute at all if the boolean expression is false on the first check. while loop कब नहीं execute होगा? जैसे ही आएगा और boolean expression को check किया जाएगा x is less than y, लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो उस टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप को सिरे से एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा. So the loop will only be executed when the condition becomes true. So while repetition structure, pseudocode example, while there are more items on my shopping list, purchase next item and cross it off my list. इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल दी गई है. डिपार्टमेंटल स्टोर में जब आप जाते हैं, यू हैव द शॉपिंग लिस्ट. लेट्स से यू हैव 10 आइटम्स ऑन द लिस्ट. सो यू व्हेन यू शॉप समथिंग, व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग, तो क्या करते हैं आप? एक चीज आपने उठा ली एंड यू क्रॉस इट आउट. फिर आप दोबारा क्या करते हैं? लूप चलाते हैं, दूसरा आइटम देखते हैं, वो मिल गया, क्रॉस इट आउट. फिर दोबारा उसी लिस्ट के ऊपर आते हैं, देखते हैं कौन सा रहता है, 3, क्रॉस इट आउट. फिर 4, 5. कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक आइटम्स 10 के 10 पूरे नहीं हो जाते. जैसे ही आपके 10 आइटम्स पूरे हो जाएंगे तो कंडीशन फॉल्स, यू आर आउट ऑफ द लूप. दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द स्टोर एंड फाइनली the condition becomes false. So there is an example statement: consider a program segment designed to find the first power of 2 larger than 1000. So ये प्रोग्राम क्या कह रहे हैं? Consider a program segment designed to find the first power of 2 larger than 1000. 2 की वो पहली पावर जो 1000 से बड़ी है. So 2 की पावर्स क्या है? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 3, 4. चेक करें. 2 power 0, 2 power 0 is what? 2 power 1 is what? 2 power 2, 2, 4, 8. Anything raised to the power 0 is 1. अच्छा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512 और 512 के बाद हमारे पास है 1024. So the first power that is greater than 1000 is 1024. उसको हम execute कैसे करें? Suppose the integer variable product has been initialized to 2. When while repetition structure finishes, executing product will contain the desired answer. इसका अब हम कोड देखते हैं. ये इसका कोड है. In product is equal to 2 while product is less than or equal to. अच्छा, हमने product को initialize किया किस चीज से? 2 से.
while product is less than or equal to 1000, जब तक प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 से कम है या बराबर है तो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आप किस चीज से? 2 से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रन पे यू हैव द वैल्यू 2, अब 2 is less than or equal to 1000, condition becomes true, so the next statement after the while will be executed. So वो statement क्या है? product is equal to 2 into product. प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 2। किसके साथ मल्टीप्लाई करने? 2 के साथ। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 4। प्रोडक्ट में अब सेव है 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1000? यस। सो 4 मल्टीप्लाई विद 2। अब प्रोडक्ट में क्या सेव हो गया? 8। अब चेक किया जाएगा 8 इज लेस देन और इक्वल टू 1000? यस। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2। 16 हो जाएगा। 16 इज लेस देन और इक्वल टू 1000? यस। इसी तरह चलता रहेगा। 512। 512 इज लेस देन और इक्वल टू 1000? यस। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1024। 1024 इज लेस देन और इक्वल टू 1000? नो। अब प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू हो गई 1024, इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। सो द फर्स्ट पावर दैट इज ग्रेटर देन 1000 इज 1024। ये इसी प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। So you can see the same program, first power of 2, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4. So 2 power 1 is 2, then 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1024 पे आके लूप से बाहर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर निकल जाएगी। This is another program. It says how many greetings you want to print. ये एक प्रोग्राम है जो आपसे रन टाइम में पूछेगा कि कितनी ग्रीटिंग्स को आपने प्रिंट करने, सिर्फ हेलो को प्रिंट करना। लेट्स से 10 टाइम्स, लेट्स से 20 टाइम्स। सो आप वो नंबर दें और वो उसको प्रिंट करेगा। सो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंटडाउन। सी इट स्टार्ट्स विद द काउंटडाउन। हाउ मेनी ग्रीटिंग्स डू यू वांट? सी इन में वो नंबर दे दें, लेट्स से 5, 10, 20। अब वाइल लूप, while countdown is greater than, जो आपने नंबर दिया है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, 5 इज ग्रेटर देन 0। सी आउट हेलो और एक टैब दे दिया जाए। काउंटडाउन इक्वल्स टू काउंटडाउन माइनस 1। इसका मतलब है काउंटडाउन माइनस माइनस। क्या हुआ इसका मतलब? कि इफ जो वैल्यू थी हमने जो दी थी 5, उसको डिक्रीमेंट किया जाए। अब उसकी वैल्यू क्या है? 4 हो गई। 4 इज ग्रेटर देन 0? यस। एग्जीक्यूट। देन फिर डिक्रीमेंट 3 इज ग्रेटर, फिर डिक्रीमेंट प्रिंट करता जाएगा इसी तरह और इस लूप में चलता जाएगा जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती। 0 इज ग्रेटर देन 0? नो। तो उस पर फॉल्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जब फॉल्स हो गए इस लूप से बाहर निकलेगा, इधर आ जाएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है? So that was pretty simple. We can implement the same program in the C++ compiler. 2 power 10. Yes, 2 power 10. So इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। Now the program is executed. How many greetings do you want? Let's say 10. 10 times उसने प्रिंट कर दिया hello 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 and 10 times. That's all. Have a great day. Let's say you want 1000.
1000 टाइम्स हेलो को प्रिंट किया और बाहर निकल गया। सो लूप की बॉडी से तब ही बाहर निकलेगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट इधर से हटा देते हैं तो फिर उसका क्या नुकसान है, इट बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर दे दे, लेट्स से 1 इज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा, तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगी। लेट्स इसको हम कमेंट करते हैं। अब कोई भी वैल्यू आप दे दे, 2 इज ग्रेटर देन 0, हेलो, फिर आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 0, हेलो, 2 इज ग्रेटर देन 0, बस इसी लूप में फंसा रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन इसमें अब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। लेट्स से 2, अब देखें, द लूप कीप्स ऑन रनिंग, सो इट बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप। 2 इज ग्रेटर देन 0 हमेशा ग्रेटर रहेगा। लूप से तभी आप बाहर निकल सकते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। सो कीप इट इन माइंड कि लूप से बाहर निकलने के लिए द कंडीशन मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स। So that is the output of this program. Now it says counter controlled repetition. काउंटर कंट्रोल का क्या मतलब है? दो किस्म की रिपीटिशन है हमारे पास, काउंटर कंट्रोल एंड सेंटिनल कंट्रोल. Counter control means when in advance we know how many times the loop will run. We have the counter variable, we have initialized the counter variable to a certain value, and in advance we know how many times the loop will run. For example, in the previous example, that was counter controlled. So we put 10 and we know that the loop will run 10 times. We put 50 and we know that the loop will run 50 times. So the counter control means in advance you know how many times the loop will run. So similarly हमने जो switch की example की थी उसको हम counter control नहीं कह सकते. In advance we do not know how many times the loop will run. क्यों? मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, ए ग्रेड मैंने 10 दफ़ा दिया, बी मैंने 5 दफ़ा दिया, सी ग्रेड मैंने 3 दफ़ा दिया, एफ मैंने 20 दफ़ा. कोई और रन करता है, वो 1000 टाइम ए देता है, फिर बी बिल्कुल नहीं देता, सी 5 टाइम्स देता. सो इट ऑल डिपेंड्स that what you are doing and the loop will execute on the occurrence of certain sentinel condition. उधर लूप कब टर्मिनेट होती थी? जब हम कंट्रोल Z को एंटर करते थे. So the sentinel condition was control Z, and in advance you didn't know how many times the loop will run, so that is called sentinel control repetition. Counter control, pretty simple. In advance you know that the loop will run that many times. So for the counter control, the appropriate loop is for loop. And for the sentinel control, the appropriate loop is while loop. इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि जो आपके पास sentinel conditions हैं वहां पे आप for को यूज नहीं कर सकते. You can use the for loop there as well, and even in the counter control you can use the while loop. Appropriate का मतलब है कि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है अगर आप इस लूप को इधर यूज करें, आसानी से आपका काम हो जाएगा. ठीक है. So the counter control and sentinel, well clear. Essential of the counter control. So you should have the name of the control variable, initial value of the control variable, condition to test, increment and decrement. ये आगे हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. Now, simple example to understand counter control repetition. जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी या ये वाली, दोनों काउंटर कंट्रोल है. इसने क्या करना है? काउंट equals to 1 while count is less than or equal to 100, cout count \t count plus 1. इसे क्या करना है? 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है.
So in advance you know how many times the loop will run? 100 times. पहले से आपको पता है लूप ने कितनी दफा रन होना है? 100 times. So let's implement this program as well. Let's compile the program. अच्छा, now see how many times the loop has to run? 100 times. 1 से लेकर 100 तक आपके सामने प्रिंट कर दिया. ये कैसी लूप है? int count equals to 1 while count is less than or equal to 100. पहले count की वैल्यू है 1, चेक किया जाएगा 1 is less than or equal to 100. yes. क्या करना है इसने? काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दें और एक टैब दे दें. काउंट में क्या है? 1 है और एक टैब. फिर क्या करना है? काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1. 1 प्लस 1 इज 2. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100. यस. प्रिंट 2 एंड टैब एंड 2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे बाय 1. सो 3 हो जाएगा. 3 इज लेस देन, इस तरह 4 5 6. 100 इज लेस देन और इक्वल. यस, इट्स इक्वल टू 100. प्रिंट किया जाएगा 101 इज लेस देन और इक्वल. यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. रिटर्न 0 एंड दैट्स इट. अब अगर हम इस इंक्रीमेंट को हटा दें तो ये लूप किस किस्म की हो जाएगी? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 100. यस, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी. सो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप दैट कैन प्रिंट 1 all the time. Let's compile. अब देखिए 1 को बार बार प्रिंट किया जा रहा है और नीचे लाइन बस प्रिंट होती जा रही है. सो इट्स एन इनफाइनाइट लूप. क्यों? 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100 और कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तो लूप से बाहर नहीं निकल सकता. ठीक है. सो यू मस्ट बी केयरफुल कि यू विल एग्जिट द लूप व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. अब लूप का फायदा देखें कि सिर्फ इधर वैल्यू चेंज करें 100,000 10,000 और आप बड़ी आसानी से 1 से लेकर 1000 तक 10,000 तक जो भी प्रिंट करवाना चाहे बड़ी आसानी से. इसके बरक्स अगर ये आपको खुद प्रिंट करना पड़ता है तो काउंट की वैल्यू को 1 2 3 4 ये आपको मैनुअली करना पड़ता है और इधर 2 लाइन 3 लाइन ऑफ कोड से वही काम हो जाता है बहुत आसानी से. Now we want to print 1 to 1000. See? Pretty simple. Now coming to the slides. Acha. It says when you write the program, use the top-down design. Top-down design का क्या मतलब है? कि keep it in mind these 3 steps: initialization, processing, and termination. In initialization, initialize the program variables. Processing, input data variables, adjust program variables accordingly. ये और termination, calculate and print the final result, help breakups program for top-down refinement. अब ये आप हर एक प्रोग्राम में करते रहे हैं. क्या करते हैं? शुरू में आप वेरिएबल्स लेते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला है पुट करना है वो डाल देते हैं, फिर उससे जो रिजल्ट लेना है कैलकुलेट करना है वो लेके फाइनली प्रिंट कर दें. सो इस अप्रोच को ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं टॉप डाउन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट. कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस अप्रोच को यूज करते हैं. समटाइम्स कुछ स्टूडेंट नहीं यूज करते, वेरिएबल्स को शुरू में नहीं डिक्लेयर करते, जहां पे जरूरत होती है वहां पे डिक्लेयर करते हैं, फार्मूला को कहीं पे यूज कर लेते हैं. तो उसमें मसला क्या होता है?
कि उसको समझना और डिबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करेंगे, so that will be easier to understand, easier to change, easier to write, easier to test, easier to debug, and easier to for team to develop. Counter control repetition example: write a program to determine the average of class grades. Total number of student is in the class is 10. एक प्रोग्राम आपने लिखना है जो क्या हो, काउंटर कंट्रोल्ड हो, और क्या करे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करें और उसका एवरेज लेके आपको डिस्प्ले कर। उसका सूडो कोड लिखा गया है: सेट टोटल टू 0, सेट ग्रेड काउंटर, ग्रेड हम बेसिकली मार्क्स को कह रहे हैं, मार्क्स का जो काउंटर है उसको 0 किया जाए, वाइल ग्रेड काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10. Input the next grade, add the grade in the total, add 1 to the grade. इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, ये सूडो कोड है। वही स्टेप वाइज रिफाइनमेंट टॉप डाउन वो भी आपके सामने बताई गई है। इनिशियलाइज करें, प्रोसेस करें और टर्मिनेट करें। सो दैट्स द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। Now we compile this program. .h को रिमूव कर दें। हेडर फाइल्स पहले इसको .h कहा जाता था, अब .h की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, let's compile the program. Enter the grade, let's say 1 1. दोबारा इसको करते हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने एंटर करने हैं। द क्लास एवरेज इज 1। क्या किया है? टोटल हमने 1 1 सारों को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल। सो 10 डिवाइड बाय 10 दैट इक्वल्स टू 1। ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है कि आपसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए जा रहे हैं और उसको एवरेज किया जा रहा है। वाइल ग्रेड काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे देखें, ग्रेड काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 क्यों? क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है। अगर 20 होते तो हम इसको 20 कर देते। टोटल को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, ग्रेड काउंटर को हमने 1 से। 1 से क्यों? 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 10, डिफरेंस कितने का है? 10। तो 10 स्टूडेंट्स है, हमने इसको 10 टाइम्स चलाना है। सी इन ग्रेड, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ग्रेड। टोटल एक वेरिएबल है जिसमें हम सारी वैल्यूज को, जितने भी ग्रेड्स या मार्क्स लिए जा रहे हैं उसमें डाले जा रहे हैं। और फाइनली हम ग्रेड काउंटर इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे कि 10 आइट्रेशन के बाद हम लूप से बाहर निकल जाएं। सो द एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 10। जितना स्टूडेंट्स है उसके ऊपर उसको डिवाइड करें, आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। सिंपल एवरेज का प्रोग्राम है। अब आते हैं सेंटिनल कंट्रोल। सेंटिनल के बारे में हमने बताया, सेंटिनल कंट्रोल को हम इनडेफिनिट रिपीटिशन भी कहते हैं। सो काउंटर कंट्रोल को फिर हम क्या कहते होंगे? definite repetition. So in counter control, we definitely know how many times the loop will run. In indefinite repetition, in start we don't know, but at the occurrence of certain sentinel condition, the loop will terminate. Acha. The number of repetition is not known before the loop begins executing. Unknown number of inputs to the loop require a sentinel value to indicate end of the data entry to quit the loop. अच्छा, अब स्विच का जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें सेंटिनल वैल्यू क्या थी?
एंड ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल जेड, जैसी कंट्रोल जेड पुट करते हैं तो कंडीशन फॉल्स और आप बाहर निकला। अब आपको बताया जा रहा है कि अगर ये ग्रेड्स वाली एग्जांपल में मैं कोई सेंटिनल वैल्यू डालना चाहूं तो क्या हो सकती है, एनी वैल्यू दैट डजंट मैच द एक्चुअल इनपुट। व्हाट डज दैट मीन? एक्चुअल इनपुट स्टूडेंट के मार्क्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, कोई भी मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3। तो हम सेंटिनल कंडीशन के लिए एक ऐसी वैल्यू का इंतखाब करें, ऐसी वैल्यू चूज करें जो इनपुट के अंदर रिपीट ना हो रही। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट वांट द computer or we do not want to confuse the compiler to confuse the value of the sentinel value with the actual input। अगर आपने -1 सेंटिनल वैल्यू दे दी, सॉरी 1 आपने सेंटिनल वैल्यू दे दी, तो 1 तो स्टूडेंट का ग्रेड भी हो सकता है। तो कंपाइलर को क्या पता लगेगा कि आप ये ग्रेड में इनपुट करना चाह रहे हैं या प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो उसका फिर क्या होगा? अगर स्टूडेंट ने 1 मार्क लिया हुआ है, 1 पे तो आप प्रोग्राम टर्मिनेट कर देते हो, उसके मार्क्स को एंटर कैसे करें? सो यू मस्ट चूज a value that is not repeated in the actual input. In case of switch statement, we have selected the end of character. Control Z, that was not repeated in the actual input. Actual input उसमें क्या थे? A and small a, B and small b, C and small c. इधर actual inputs क्या है? 1 2 3 any number, but we have used the -1 as the sentinel value. इस -1 को हम कहते हैं डमी वैल्यू। सो वही प्रोग्राम जो आपने अभी हमने ग्रेड्स वाला किया था, तो उसमें हमने -1 का इजाफा कर दिया। देखते हैं इसका कोड। वही प्रोग्राम है जो हमने अभी किया है, लेकिन सिर्फ उसमें एक चेंज हो गया, वाइल ग्रेड नॉट इक्वल टू -1। जब तक ग्रेड -1 नहीं आता कीबोर्ड से तो क्या करना चाहिए? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ग्रेड। टोटल में बस जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, ठीक है। और ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड +1 और इंक्रीमेंट होता जाएगा इसी तरह। एंड फिर क्या करना है? लूप से अगर तो आपने -1 दे दिया तो लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर क्या करना है? इफ ग्रेड काउंटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ग्रेड काउंटर की वैल्यू अगर 0 रही, इसका मतलब है आपने अभी तक कोई ग्रेड नहीं दिया, क्योंकि हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया था। अगर ग्रेड काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब कम से कम एक बंदे का रिजल्ट आपने डाला है। अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो 2 स्टूडेंट्स, 3 हो गई तो 3 स्टूडेंट्स, 4 हो गई तो 4 स्टूडेंट्स। सो इफ ग्रेड काउंटर इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर क्या करना चाहिए? एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय द ग्रेड काउंटर। टोटल में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करें ग्रेड काउंटर के ऊपर। वही प्रोग्राम है, सिर्फ -1 इसको सेंटिनल बना दिए। अच्छा, difference between the program logic of counter control and sentinel control repetition considering the grade example। ये दोनों जो हमने प्रॉब्लम की हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? काउंटर कंट्रोल, द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इज रीड ड्यूरिंग ईच पास ऑफ द while structure for the specified number of passes। सो जो काउंटर कंट्रोल्ड है उसमें शुरू ही से आपसे वैल्यू ले ली जाती है एंड यू नो इन एडवांस how many times the loop will run। But in sentinel control and advanced, you do not know how many times the loop will run। ठीक है। sentinel condition क्या है इसमें? -1 जब भी कीबोर्ड से आएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। द कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड द प्रोग्राम विल टर्मिनेट। सो यही डिफरेंस है। तो फिर मैंने आपको बताया सेंटिनल के लिए अप्रोप्रिएट कौन सी है? while loop, एंड फॉर द काउंटर कंट्रोल द अप्रोप्रिएट इज for loop। ठीक है। अच्छा, अभी तक while लूप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल, द सिंटैक्स ऑफ द while लूप से रिलेटेड कोई भी चीज है तो अब आप पूछ सकते हैं। मैसेज में भी पूछ सकते हैं और माइक पे भी पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर हम आगे जाते हैं. While loop, the counter control and sentinel control, conditions, boolean expression, कोई भी चीज हो while से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. जब तक while के अंदर कंडीशन ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सो वी विल exit the loop and the control will be transferred to the next statement after the while loop. ठीक है. नो क्वेश्चन. अच्छा, हम क्या करते हैं, एक 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं. अभी आप क्लास में रहे. सो आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है. अच्छा, let's back to our previous discussion. So we are done with the while loop, the counter control and sentinel control conditions. ठीक है. अब हम जाते हैं. We look into the next slides. Now, what it says, nested control structures. What does that mean? जिस तरह आपके पास nested loops थे, अब nested control structures भी हो सकते हैं. So we can have a while loop. Within the while loop, we can have the selection structure within the while loop. क्या हुआ, एक while loop है जिसके अंदर हमारे पास if है, या एक if है, selection structure है, उसके अंदर हमारे पास while loop है. ठीक है. So the vice versa is possible. So when you have the while loop, inside the while loop you have
a selection structure, so we call it a nested control structure. एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है. क्या मतलब हुआ इसका कि while लूप के अंदर हमारे पास if है या if and else है या nested if and else है, या if के अंदर while लूप है या for लूप है, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर. अब एक प्रॉब्लम दी गई है. A college has a list of test results. 1 is equal to pass, 2 is equal to fail for 10 students. Write a program that analyzes the results. If more than 8 students pass, print raise tuition. A college has a test result. एक कॉलेज के पास एक रिजल्ट है 10 स्टूडेंट्स का. अगर तो कोई स्टूडेंट पास कर जाता है तो उसके लिए आपने इंटर करना है 1, और अगर कोई फेल कर जाता है तो उसके लिए 2. अगर तो 8 से ज्यादा स्टूडेंट पास कर जाते हैं तो ट्यूशन फीस को ज्यादा कर दिया जाएगा. अगर तो उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं पास करते, 9 या 10 नहीं पास करते, 8 या 8 से कम, तो फीस को ज्यादा नहीं किया जाएगा. ठीक है. सो इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं, वही टॉप डाउन रिफाइनमेंट. Input the 10 quiz. अच्छा, while student counter is less than or equal to 10, input the next exam if the student pass. अच्छा, अब आपके पास दो काउंटर वेरिएबल होंगे, एक पास को नोट करेगा, दूसरा फेलियर्स को, और फाइनली जो आपने रिकॉर्ड कर लिए उनको आपने प्रिंट करना है. सो दैट्स द प्रोग्राम. प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वीक में आपका इंशाल्लाह कमिंग जो वीक है उसमें क्लास होगी, तो उसमें आपका क्विज एग्जाम भी होगा. एक क्विज होगा. क्विज में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक आध प्रोग्राम भी हो सकता है. कौन से टॉपिक से रिलेटेड? वो टॉपिक जो हमने ये 2 ऑनलाइन क्लासेस में किए हैं. कौन से? ये जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, और उससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? सिलेक्शन स्ट्रक्चर किया था, और इधर हम आज कंट्रोल. तो इससे रिलेटेड आपका क्विज हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं. वो कैसे करना है? आपके पास स्टूडेंट मैनुअल है, उसमें क्विज का जो सेक्शन है वो जरा जाके फिर रीड कर लें. आपको मैंने जो मैनुअल दिया है, शेयर किया हुआ है, उसमें जो स्टूडेंट के लिए क्विज सेक्शन है वो जरा रीड कर लें. एंटर द रिजल्ट. 1 पास. जितनी दफा आप 1 देते जाएंगे इसका मतलब है ये स्टूडेंट पास है. 3, 6, 7, 8 पास, 9 पास, लेट्स से एक स्टूडेंट फेल. सो 9 पास, 1 स्टूडेंट फेल, वेयर इज द ट्यूशन फीस? कंडीशन क्या थी? 8 से ऊपर, मतलब 9 या 10 स्टूडेंट पास होंगे तो ट्यूशन फीस ज्यादा होगी, अगर उससे ज्यादा पास ना हुए तो ट्यूशन फीस को ज्यादा नहीं किया जाएगा. ठीक है. सो ये प्रोग्राम कैसा है? हमारे पास वी हैव 4 वेरिएबल्स. एक पासेस को के लिए यूज होगा, एक फेलियर्स के लिए यूज होगा जो पासेस को काउंट करे, दूसरा फेलियर को. एक स्टूडेंट काउंटर. स्टूडेंट काउंटर का मतलब है कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनको काउंट करे. लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये काउंटर, और एक रिजल्ट नोट करने के लिए. सो व्हाइल लूप स्टूडेंट काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10. स्टूडेंट काउंटर को हमने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक जाएगा, 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है.
सी आउट, enter result, 1 is for pass, 2 is for fail. C in result, if result double equals to pass, if result double equals to 1, अगर रिजल्ट की वैल्यू कोई 1 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो बंदा पास है, और पास स्टूडेंट की तादाद हमने पहले 0 दी हुई थी, तो अब एक बंदा पास हो गया, तो हम क्या करते हैं, पास इज इक्वल टू पास प्लस 1, अब इसमें 1 स्टोर हो गया। अगर तो पास नहीं है, 2 दे देते हैं, तो वो फेल है, तो फेल में क्या वैल्यू 0 पड़ी हुई थी, तो 0 प्लस 1 इज 1। इसी तरह जैसे ये हो जाए तो स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट काउंटर प्लस 1, स्टूडेंट काउंटर की वैल्यू क्या थी 1, अब 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 10, यस। ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक 10 इक्वल्स टू 10 11 ना हो जाए। 10 दफा रन होगा, बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, क्या करना है, सी आउट पास, पासिस वेरिएबल में जो वैल्यू है और फेलियर्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट की जाएगी। फिर एक कंडीशन है, इफ पासिस इज ग्रेटर देन 8, क्या होना चाहिए, अगर पास की वैल्यू बड़ी है किस चीज से, 8 से, तो क्या होना चाहिए, रेज ट्यूशन। तो अगर तो आपने 8 या 9 दफा पास एंटर किया है तो ये प्रिंट होगा, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स। अच्छा, ये जो एग्जांपल थी, ये प्रीवियस हमने अभी की, ये किस चीज की एग्जांपल थी, ये नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर थी। इसमें अगर आपने गौर किया हो, देखें इधर आपके पास वाइल लूप है, यहां से एक वाइल लूप स्टार्ट हुई, सी वाइल स्टूडेंट काउंटर, ये वाइल लूप स्टार्ट हो गई, और वाइल की बॉडी के अंदर आपके पास क्या है, इफ और एल्स। ये इफ और एल्स जो है ये वाइल की बॉडी के अंदर ही है। तो इस वाइल के लिए हर एक दफा रन होने के लिए एक दफा ये इफ एंड एल्स भी रन होगा। ये वाला इफ नहीं है, ये इसकी बॉडी से बाहर, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अभी तक वाइल लूप या काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, यूईटी के डोमेन से जो भी बाहर है तो उनको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं डोमेन से बाहर है क्लास में आने की, तो उनको आप काइंडली बता दें कि यूईटी का ईमेल एड्रेस, अगर तो ईमेल एड्रेस में कोई पासवर्ड या फैसल से बात करें, सीएमएस से बात करें, वो मतलब वो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें अपने सीएमएस से और उनसे। तो जब आपको आईडी मिल जाए तब, क्योंकि जब भी आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है तो द बेस्ट अप्रोच है उसका पासवर्ड चेंज कर ले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कम टू मी, सर ये पासवर्ड चेंज हो गया, ये हो गया, वो, तो ये आपको चाहिए, दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको अपना पासवर्ड खुद ही नहीं याद रहता, तो ये फिर आपके अपने मसाइल हैं, उसको आप हल करें। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स, नाउ वी लुक इनटू द फॉर लूप। फॉर लूप कौन सी किस्म की कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट है, जहां पे काउंटर कंट्रोल कंडीशन। फॉर लूप का ये जर्नल फॉर्मेट आपके सामने गिवन है। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ टाइम्स टू बी रिपीटेड इज फिक्स्ड नोट, मतलब काउंटर कंट्रोल हो, वहां पे अप्रोप्रिएट। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सेंटिनल कंट्रोल कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं है। It handles all details of the counter control repetition. Execution continues as long as the Boolean expression is true. Loop कब तक रन होगा, जब तक Boolean expression true रहेगा। So the journal format of the for loop is for initialization semicolon, ठीक है। Then you have the loop continuation test, ये वो Boolean expression है कि x is less than y, x is greater than y, जिससे true और false की वैल्यू आएगी, सेमीकॉलन और अपडेट, करली ब्रेसेस, स्टेटमेंट ब्लॉक। स्टेटमेंट ब्लॉक का मतलब है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट है इधर आपके पास। अब इनिशियलाइजेशन भी है इसमें, लूप टेस्ट भी है और अपडेट। एक ही लूप के जो सिंटेक्स है उसमें ये तीनों चीजें कवर हो रही, ठीक है।
इनिशियलाइजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल्स टू 0, हमने एक वेरिएबल लिया आई, इसको हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, और उसको हमने इनिशियलाइज किया किस चीज से? 0 से। लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट क्या है? लेट्स से x इज लेस देन y, और लेट्स से z इज ग्रेटर देन 0, ये एक लूप कंटिन्यूएशन। काइंडली अपना अपना माइक बंद कर दें। काइंडली अपना माइक बंद कर दें। उस्मान खान अपना माइक बंद कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज पे पूछ लें, ठीक है? माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछना है तो ये चैट बॉक्स में जाएं और इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इफ एनीबडी wants to ask any question, so he can go to the chat, वहां पे अपना क्वेश्चन लिखें, so I will answer that question. माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, फॉर इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल्स टू 0, लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट जिसके ट्रू या फॉल्स होने पर ये लूप एग्जीक्यूट होगी। ट्रू होने पर लूप एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पर टर्मिनेट कर जाएगी। अपडेट यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? वही तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो दोबारा रिपीट हो गई हैं कि व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज लूप कंटिन्यूएशन एंड व्हाट इज अपडेट। Initialization done only once at the start. Initialization expression initialize and declare the loops control variable int counter equals to 1. Notice that there is a semicolon. हाँ, इधर सेमीकॉलन को नहीं भूलना। इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमीकॉलन है, लूप कंटिन्यूएशन के बाद भी सेमीकॉलन है, अपडेट के बाद कोई सेमीकॉलन नहीं, ठीक है? लूप कंटिन्यूएशन क्या है? वही बुलियन एक्सप्रेशन x इज लेस देन, लेट्स से काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे इसकी वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी ये लूप रन होता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इससे बाहर। अपडेट, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लूप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दी गई है, फॉर इंट काउंटर इक्वल्स टू 1, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10, काउंटर प्लस प्लस, सी आउट काउंटर एंड एल। इस प्रोग्राम ने क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, 1 को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन। सो कीप इट इन माइंड, इन द फर्स्ट रन द कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड। फॉर एग्जांपल इन काउंटर इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अब अपडेट नहीं करेगा, सीधा नीचे चला जाएगा, 1 को प्रिंट करेगा एंड एल, अब अपडेट करेगा। 1 की वैल्यू अपडेट कर दी, 2 हो गई, 2 इज लेस देन 10, यस, अब 2 को प्रिंट किया, अब इंक्रीमेंट होगा, 3 इज लेस देन 10, यस, प्रिंट, फिर 4 5 सिमिलरली। तो पहले रन में फॉर लूप में कंडीशन चेक की जाएगी, इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, सेकंड आइटरेशन में इंक्रीमेंट किया जाएगा। ये अगेन फॉर लूप दी गई है, वही फॉर कीवर्ड है, फिर जो ब्रैकेट्स के अंदर है, फर्स्ट आपका इनिशियलाइजेशन है या लूप काउंटर वेरिएबल है, फिर आपका टेस्ट है या बुलियन एक्सप्रेशन है, और फिर उसके बाद अपडेट है। सो 2 सेमीकॉलन और फिर अपडेट। अच्छा, फजल साजिद अपना कैम ऑफ कर दें काइंडली। कैम ऑफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यू आर इंजीनियर्स, आपके सामने ये जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक के ऊपर माइक बना हुआ है, दूसरे के ऊपर फोन बना हुआ है, और तीसरे के ऊपर कैमरा बना हुआ है। आपने माइक के ऊपर क्लिक किया, आपका माइक बंद हो जाएगा, कैमरे के ऊपर क्लिक किया, आपका कैम बंद हो जाएगा, और अगर फोन के ऊपर क्लिक किया तो आपका ये जो मीट का सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? ठीक है, तो इसमें कोई इतनी
टेक्निकल चीज नहीं है कि किसी से कैमरा नहीं बंद हो रहा है, किसी से माइक नहीं बंद हो रहा, तो काइंडली ये दोनों चीजें आप बंद रखें। अच्छा, नाउ अगेन गोइंग टू द स्लाइड्स, इट सेज वेरी कंट्रोल फ्रॉम 1 to 100 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1। इसके लिए फॉर लूप लिखनी है जो 1 से स्टार्ट हो, किधर तक जाए, 100 तक जाए, और इंक्रीमेंट कितना हो, 1 का। सो प्रीटी सिंपल, फॉर int x equals to 1 semicolon x is less than or equal to 100 semicolon x plus plus, या हम लिख सकते हैं int I equals to 0 semicolon I is less than or equal to 100 semicolon I plus plus। I plus plus का क्या मतलब है, I is equal to I plus 1, ठीक है। तो वही बात, int I equals to 1 I is less than or equal to 100 I plus plus। Again another loop that starts from 100 and decrement by 1 and reaches to 1। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा, फॉर int I equals to 100 I is greater or equal to 100, sorry I is greater or equal to 1 semicolon I plus plus। बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, 100 से स्टार्ट करें, किधर तक जाने, जब तक 1 से 1 के बराबर नहीं हो जाता या उससे ग्रेटर नहीं रहता, तो इस लूप को रन होना है, और I माइनस माइनस, ठीक है। फॉर int I is equal to 0 I greater or equal to 1 और I minus 1। Vary control from variable from 7 to 77 in step of। लूप ने स्टार्ट होना है 7 से, जाना किधर तक है, 77, और इंक्रीमेंट कितना होगा, 7 का। Pretty simple, int I equals to 7 semicolon I is less than or equal to 77 semicolon I plus equals to 7, या I is equal to I plus 7। See, vary control from 20 to 2 in step of -2। स्टार्ट करे 2 से, और जब तक स्टार्ट करे 20 से, और जब तक 2 से ग्रेटर रहे तो उसमें डिक्रीमेंट करते रहे 2 को। फॉर इक्विवेलेंट वाइल स्ट्रक्चर, वाइल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वाइल में हमारे पास सिर्फ कंटिन्यूएशन टेस्ट है, ना इनिशियलाइजेशन है, ना हमारे पास अपडेट है। लेकिन इधर एक तरीका बताया गया है, अगर आप वाइल लूप को फॉर के बराबर बनाना चाहें तो दो चीजों को ऐड करना है। वाइल में हमारे पास क्या था, वाइल में सिर्फ हमारे पास ब्रैकेट्स एंड बूलियन एक्सप्रेशन, नो इनिशियलाइजेशन, नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब अगर हम अपने आप से वाइल के पहले हम इनिशियलाइज कर लें और वाइल की बॉडी के अंदर हम अगर इंक्रीमेंट कर लें, तो क्या करेगा, वो बिल्कुल फॉर की तरह काम करेगा। अब इनिशियलाइजेशन भी है हमारे पास, इंक्रीमेंट भी है, लूप कंटिन्यूएशन, तो ये क्या बन गए, ये तो फॉर लूप बन गए। लेकिन इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स इन वाइल लूप। यू कैन ऐड देम, you can make it equivalent to the for loop, but initialization and increment is not part of the while loop as a syntax। अगर आप इनको ना भी डालें तो कोई एरर नहीं होगा, लेकिन अगर for loop में इनिशियलाइजेशन नहीं है, या अपडेट नहीं है, या कंडीशन चेक नहीं है, तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल फॉर इक्विवेलेंट बता दी, जिस तरह मैंने कहा था एप्रोप्रिएट सेंटिनल के लिए वाइल है, लेकिन अगर आप काउंटर के लिए, काउंटर कंट्रोल के लिए वाइल यूज करना चाहें तो इस किस्म की चेंजेस करके आप वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। इन काउंटर इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन, वाइल काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10, किधर तक जाने, 10 तक, काउंटर और काउंटर प्लस प्लस। इसका फॉर इक्विवेलेंट क्या होगा, फॉर इन काउंटर इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10 सेमीकोलन, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। तो फॉर एक ही लाइन में होगा, ये 2-4 लाइनों में हो जाएगा, काम एक ही जैसे करेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रिंट द इंटीजर नंबर 1 to 10 ऑन द स्क्रीन यूजिंग फॉर लूप। बड़ा आसान है, int I is equal to 0, सॉरी int I is equal to 1 से प्रिंट करना है, int I is equal to 1 सेमीकोलन, I is less than or equal to 10 सेमीकोलन I plus plus।
ये जो मैंने अभी बताया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 या इंट काउंटर, कोई भी वेरिएबल यूज कर ले, x इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, x इज लेस देन और इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, x प्लस प्लस, आपकी अपनी मर्जी है जो वेरिएबल यूज करना चाहें। काउंटर को डिस्प्ले करें और एंड एल कितनी दफा रन होगा, 10 टाइम्स 1 से शुरू होगा, 10 तक रन होगा, जैसी वैल्यू 11 हो जाएगी रिटर्न 0 पे आ जाएगा। Write a for statement that computes the sum of all the even integers up to 10. फॉर लूप लिखनी है जिसने क्या काम करना है, 1 से 100 के दरमियान में जितने भी इवन इंटीजर्स है उन सारों को सम करने, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 अप टू 100। सो इसके लिए फॉर लूप लिखना है। अगेन प्रीटी सिंपल, फॉर इंट इसको हम इनिशियलाइज कर दें 2 से और नंबर इज लेस देन और इक्वल, इधर देखें फॉर इंट नंबर इक्वल्स टू 2, 2 से हमने स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट करने का फायदा नहीं है, 0 प्लस 2 से क्या है, वही 2 आना है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2, 2 नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100 सेमी कॉलन, नंबर प्लस इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2। 2 का इंक्रीमेंट क्यों हम डाल रहे हैं, क्योंकि 2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने जाना है 4 के ऊपर, तो 2 का इंक्रीमेंट 4 कर देगा, फिर 4 प्लस 2 इज 6, फिर 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2, तो 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, स्टार्ट भी 2 से होगा और 2 का इंक्रीमेंट, ठीक है। सम में पहले से क्या पड़ा है, 0, इसका मतलब है सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो पहले आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2, सम में क्या सेव हो गया, 2, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 2, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 100, यस, इधर आ जाएगा। इसमें क्या पड़ा हुआ था, 2 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है, 2 प्लस 4 6, 6 स्टोर हो जाएगा इसमें, उधर हमारे पास क्या था 4, अब 4 में फिर 2 प्लस हो जाएगा 6, इधर फिर 6 प्लस 6, तो इसी तरह सारे दो दो जमा होते जाएंगे आइट्रेशन में और वो इधर जमा होता जाएगा। सम इज सम एंड एल, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो जब 102 पे चला जाएगा तो फॉल्स हो जाएगी, बाहर निकल आएगा, सम को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो द आंसर विल बी 2550। अच्छा, यूज मल्टीपल वेरिएबल इन अ लूप, आप मल्टीपल वेरिएबल, अभी तो हम एक वेरिएबल को देख रहे हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, अब हम कर सकते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन, फिर जे प्लस आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, जे प्लस प्लस और आई कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, सी आउट जे प्लस आई और एंड। तो इस किस्म की कंपाउंड स्टेटमेंट्स को भी आप फॉर में यूज कर सकते हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, लेकिन उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। ये हम आगे देखेंगे जब हम मैट्रिसेस या टेबल्स को करेंगे, तो फिर इस किस्म की फॉर लूप्स हमारे सामने आएंगी। एक लूप जो है वो रो को कंट्रोल कर रहा होगा, दूसरा कॉलम को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वहां पे हम इसको ज्यादा डिटेल में देख लेंगे। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकती हैं इसके अंदर, इंट जे इक्वल्स टू, अगर इधर देखें एक्स, जे इज लेस देन और इक्वल टू, ये इसमें एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है सेमी कॉलन, और फिर जे प्लस, इसमें भी अपडेट भी एक ऑपरेशन है, तो ये भी पॉसिबल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। So this is the problem statement, the problem to calculate the compound interest। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखना चाहें तो आप फिर खुद देख लें, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर लूप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाइल लूप, काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल, फॉर लूप, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट वेरिएबल एंड अपडेट, कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं।
Yes, you can ask the question if anything is not clear to you. कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो अभी आप पूछ सकते हैं. If there is no question, so in the chat box you write no या no question या something कि बस मैं फिर इसको wind up करूं. अच्छा ठीक है, तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. अगर तो इसके ओके ओके हम इसको वाइंड अप करते हैं. नथिंग टू वरी अबाउट. मैं सिर्फ आपकी जो अटेंडेंस है ये मैं ले लेता हूँ. I'll take the attendance. अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट जो पहले क्लास में था अब कनेक्टिविटी की इशू की वजह से नहीं है या डिस्कनेक्ट हो गया है? एनीबडी? ऐसा कोई स्टूडेंट जो क्लास में शुरू में मौजूद था और अब नहीं है? नो? अच्छा ठीक है. सो द लेक्चर विल बी अपलोडेड. अभी ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये भी अपलोड हो जाएंगी और आपका जो वीडियो लेक्चर है उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, फिर आप वीडियो लेक्चर को देखें. अगर आपको फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए ज़रा वो जो आपके पास मैनुअल है उसमें स्टूडेंट के लिए जो क्विजेज और असाइनमेंट्स हैं किस तरह परफॉर्म करनी है तो वो सेक्शन ज़रा देख लें. मे बी you have a quiz for maybe 10 to 20 minutes का क्विज हो और उसके बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे. सो बी रेडी फॉर दैट. और उसमें 2 चीज़ें, ये जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, सीक्वेंस कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल एंड रिपीटिशन कंट्रोल, इसमें से आपका प्रॉब्लम दिया जा सकता है. ठीक है. अच्छा ठीक है, देन नाउ वी वाइंड अप. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. So inshallah we will meet next week. Take care. Allah Hafiz.